Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up some questions on number system based on LCM and HCF that have appeared in SRC GBO examination. So, an HCF is a factor, the highest common factor of given numbers. So, since it is a factor, it will always be less than or equal to the given numbers. For example, if the numbers are A and B and their HCF is H, so H will always be less than or equal to A and B. At the max, it will be equal to the smaller number. Okay. Similarly, LCM is a multiple, the least common multiple, least है, but still it is a multiple. So a multiple will always be either equal to a number or greater than that number. So if LCM of A and B is equal to L, so L will always be greater than or equal to A and B, and it will always be greater than or equal to the largest number. Is that clear? Okay. Now let us say that for A and B, HCF is H. So we can write A as a multiple of H because HCF एक factor है. So let us say A is equal to HX, and similarly B will also be a multiple of H. Let us say B is equal to HY. So X and Y are the uncommon factors, the other factors which are not common between A and B. So HCF of X and Y should be equal to 1, यानी कि they should be co-prime between each other. और जो LCM होगा A और B का, that will be H into X into Y, यानी कि HCF into uncommon factors. So if you multiply A and B, A into B हो जाएगा हमारा HX into HY, which is H into HXY, which will be HCF into LCM, which is a very important property. The multiplication of the two numbers will be equal to HCF into LCM. ये प्रॉपर्टी अप्लाई सिर्फ तब होगी जबकि दो नंबर से दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो अप्लाई नहीं होगा. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कई बार ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज होती है, इसको ध्यान रखना है. ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. Also, you can connect me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CADZAT-MBA. और अगर सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 bells begin to bell together and toll respectively at intervals of 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds, 9 seconds and 12 seconds. How many times they will toll together in 1 hour? तो कब कब वो सेम टाइम पे टोल करेंगे? स्टार्ट साथ में किया है तब करेंगे जबकि 6 का मल्टीपल है, जब 7 का भी मल्टीपल है, 8, 9, 12, यानी कि सारे नंबर्स का मल्टीपल है. इज दैट सो? तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इन सारी वैल्यूज का. एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 and 12. So that LCM will be 7 into 8 into 9. 8 और 9 से 6 और 12 तो कवर अप हो गए. 7 into 8 into 9 कितना होगा? 8 into 9 is 72 into 7. That will be 504 seconds. और हमें पता लगाना है कि 1 आवर में कितने बार साथ में टोल करेंगे. Isn't it so? तो 1 आवर में हुए 3600 seconds divided by 504. So this is coming out to be how much? 7 times जा रहा है, 7 point something. Isn't it so? So 1 hour में they will be rolling together 7 times. Option D will be the answer. Clear? Okay. Next question. The sum and difference of LCM and HCF of two numbers is 638 and 580. The sum of two numbers is 2890. So what are the two numbers? LCM और HCF given है, two numbers का sum और difference given है, यानी कि LCM plus HCF is 638. As we've seen, let us say two numbers हैं A और B, तो A हो जाएगा HX, यहाँ पे HCF है, और B हो जाएगा HY, और LCM आ जाएगा यहाँ पे HXY. तो given है HXY plus H, and that is equal to 638, and HXY minus H, that is equal to 580. तो अगर हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा. सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है डिफरेंस? 58 आ रहा है, तो H विल बी 58 by 2 एंड दैट इज इक्वल टू 29. तो यहाँ से हमें एलसीएम मिल गया. HXY विल बी 609, और 609 क्या है? H तो ऑलरेडी 29 है, तो X इंटू वाई क्या आ जाएगा?
609 हो गया, 29 इंटू 21, 580 प्लस 29 यानी 29 इंटू 21 हो गया। क्लियर। और साथ में हमें एडिशनली गिवन है सम ऑफ द नंबर्स इज 290 यानी कि एच एक्स प्लस एच वाई, सेकेंड, एच एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 290 और एच है 29 यानी कि एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10। भाई एच 29 कॉमन आ गया, डिवाइड कर दोगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। क्लियर है, ठीक है। और अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है और यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है एक्स इंटू वाई 21 है, तो एक्स एंड वाई शुड बी 7 एंड 3, 7 एंड 3 यानी कि एक नंबर हमारा आ जाएगा 29 इंटू 3 विच इज 87 और अदर नंबर विल बी 29 इंटू 7 विच इज 203। numbers will be 87 and 203, ऑप्शन बी। क्लियर। तो डेटा इज सफिशिएंट, डेटा इज एडिक्वेट, बट कब डेटा इनसफिशिएंट होता है? जबकि हमें सम नहीं गिवन होता। डेटा से हमें सम ना गिवन होता, सम ऑफ टू नंबर्स ना गिवन होता, तो यहां से हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो बनती 29 एंड 87 एंड 203 की, 87 एंड 203 की एक पॉसिबिलिटी तो बनती, और सेकंड बनता हमारा कि एक नंबर 29 हो और अदर नंबर हमारा 29 इंटू 21 हो, तब भी तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ यही सेम वैल्यूज आएंगी। इज दैट इट सो? तो सेकंड केस में जबकि हमें सम गिवन नहीं होता तो हमारे पास डेटा इनएडिक्वेट होता, बट सिंस सम इज गिवन तो डेटा इज सफिशिएंट, वी कैन श्योरली फाइंड आउट दैट 87 एंड 203 विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 different containers contain different quantities of a mixture of milk and water. Measurements है 403 liters, 434 liters and 465 liters. So what biggest measure must be there to measure all the different quantities exactly? सारी डिफरेंट क्वांटिटीज को एग्जैक्टली मेजर करना है, यानी कि ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं दीज शुड बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर जिससे हम मेजर करने वाले हैं, जिससे मेजर करेंगे वो इनसे स्मॉलर नंबर होना चाहिए, यानी इनका फैक्टर होना चाहिए बेसिकली। तो वी नीड टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि बिगेस्ट सच मेजर वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो 403 जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तीन वैल्यूज का, तो हमें क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि हम एचसीएफ कॉमन फैक्टर देखें उनको फैक्टराइज करें, सबसे पहले उनका डिफरेंस देखो। क्योंकि अगर हमारे जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले ही बात किया, अगर नंबर्स हमारे एच एक्स एच वाई हैं, एच जेड हैं, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो भी तो एच का ही मल्टीपल होगा ना, तो एच उनका भी तो उस डिफरेंस का भी तो फैक्टर होगा। ठीक है, सो हम हमेशा क्या करेंगे, कोई डिफरेंस इन नंबर से छोटा होगा तो डिफरेंस से हमें हिंट मिल जाएगा, तो डिफरेंस कर लेंगे। 403 और 434 का डिफरेंस क्या आएगा? 31 लीटर्स। तो डेफिनेटली हमारा 31 लीटर्स या तो एचसीएफ होगा, 31 एचसीएफ होगा, या फिर 31 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। एंड सिंस वी नो कि क्लियरली हमें 31 में दिख रहा है ऑप्शन में, और 31 का कोई भी फैक्टर हमारा नहीं दिख रहा है, 31 अपने आप में इंटीजर है, क्लियर है, तो डेफिनेटली आंसर 31 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है। इससे बड़ी वैल्यूज बाकी सारी की सारी, इससे बड़ा कुछ भी एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस ही हमारा 31 आ रहा है। इजंट इट सो? ठीक है, 434 और 465 में भी देखोगे तो डिफरेंस आ रहा है 31 का, क्लियरली 31 हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नॉफ दीज गिवन होता फॉर एग्जाम्पल, तब फिर हम क्या करना होता, एक बार चेक कर लेते कि 403 हमारा कोई भी एक नंबर को, डिफरेंस हमने देख लिया है 31 आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर को टेस्ट कर लो, अगर कोई भी एक नंबर इन तीनों में से 31 का मल्टीपल है तो बाकी सारे भी जरूर होंगे, क्योंकि डिफरेंस 31 है। क्लियर है? और क्योंकि 31 इज द प्राइम नंबर, तो अगर 31 एचसीएफ नहीं आता है तो फिर एचसीएफ हमारा 1 ही आएगा, और कोई नंबर एचसीएफ नहीं आ सकता है। इज दैट क्लियर? अगर हमारा प्राइम नंबर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे 31 क्लियरली आ रहा है हमारा एचसीएफ, बट अगर 31 नहीं आता तो फिर हमारा एचसीएफ 1 लीटर्स ही होता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9, यानी कि अगर एक नंबर हमारा 5x होगा तो अदर नंबर विल बी 9x, और एलसीएम गिवन है 3465, एलसीएम इज 3465। एलसीएम क्या आएगा 5x और 9x का? दैट विल बी, x तो कॉमन है, x हमारा एचसीएफ होगा, और 5 × 9 यानी कि 5 × 9x विच इज 45x, और उसकी वैल्यू गिवन है हमें 3465। 45 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 45 से 7 टाइम्स जाएगा, 315 अगेन 7, तो x हमारा आ गया 77। सो वन नंबर विल बी 5 × 77, अदर नंबर विल बी 9 × 77, और टोटल सम आ जाएगा 14 × 77। क्या आएगा वैल्यू? 77 × 10 इज 770, 77 × 4 280 + 28 308, दिस विल बी 1078, ऑप्शन डी। क्लियर? ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन एक चीज और ध्यान देनी है कि हमारे नंबर्स हैं 5x और 9x, तो जो हमारा सम आएगा दैट विल बी 14x, 14x यानी कि सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 14। इज दैट क्लियर? और अगर सम हमारा मल्टीपल ऑफ 14 होना है, पहली चीज तो है कि इवन होगा, इवन होगा, और डिविजिबल बाई 7 होगा, डिविजिबल बाई 7 होगा। इज दैट क्लियर? तो हम डायरेक्टली ऑप्शन से भी टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर सकते हैं।
क्लियर है कि कौन सा हमारा ऑप्शन में 7 का मल्टीपल आ रहा है। ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है। तो कई बार अगर क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो तो ये छोटी सी बात हमारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन को आसान बनाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b इज 161, तो वैल्यू ऑफ 5a माइनस b क्या होगा? 161 क्या है, किस नंबर का मल्टीपल है? 3 का तो मल्टीपल नहीं है, 6 प्लस 1 प्लस 1 8 आ रहा है। 5 का डेफिनेटली नहीं है, 7 का हो सकता है, 7 2 14 बिल्कुल है। तो दिस इज 7 इंटू 23, दोनों ही प्राइम नंबर्स है। और सिंस a इज लेस देन b तो a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 23, तो 5a माइनस b आ जाएगा। 5 इंटू 7 माइनस 23 विच इज 35 माइनस 23 एंड हेंस आंसर विल बी 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, next question. Next is m and n are two numbers such that their LCM is 196 and HCF is 7. HCF is 7. Question पूछा, if the difference between two numbers is 21, then find the value of root of mn upon 7. अब देखो बड़ा टिपिकल टाइप का वैल्यू दिया है कि तुम्हें रूट ऑफ mn अपॉन 7 निकालना है, बट बड़ी ही आसान वैल्यू है। आसान क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि m इंटू एन क्या होगा, LCM इंटू HCF होगा, और हमें रूट mn अपॉन 7 ही तो निकालना है। तो हमें दोनों नंबर्स निकालने की कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो रूट ऑफ mn बाई 7 हो जाएगा रूट ऑफ mn यानी कि LCM इंटू HCF विच इज 196 इंटू 7, और डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। रूट 96 इज नथिंग बट 14 ओनली, बिकॉज 196 14 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर क्लियरली। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन डिस्गाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? Isn't it so? Okay. So these are all the LCM HCF based questions that have appeared in SSC GPO examination. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-XAT MBA. That is all for this session. Bye bye. Take care.